welcome back to English class. This is for class 10th. Okay, the chapter that we started is the champion. This is unit number 2 and page number 12. Yesterday we finished half of the chapter of page number 12. So we are going to start half, the remaining part, and you have to listen to me as usual, and you have to underline the difficult words, and then I will tell you the meanings and will explain the words for you. So listen to me. And we left it here yesterday. Ali broke the silence. Listen to me carefully and learn how do I pronounce the words. Okay, so listen. Man, I don't know how to come out with it. Man, I don't know how to come out with it. Gul helped. It's about our fight, right? Yeah, right. I've been thinking about it too, buddy. In fact, since we found out it was going to be me and you, I've been awake at nights, pulling punches on you, trying not to hurt you. Same here. It's natural to think about the fight. I mean, we both are outstanding fighters and we both want to win. But only one of us can win. There is no draw in the elimination. Ali tapped Gul gently on the shoulder. I don't mean to sound like I'm bragging, bro, but I want to win, fair and square. Gul nodded quietly. Yeah, we both know that in the ring the better man wins. Friend or no friend, brother or no. They shook hands and departed to confront each other in the ring. Walking the streets had not relaxed Ali. The more he thought about the fight, the more perplexed he felt. If you could not understand, if you could not listen well, if you did not underline the words, pause the video for a while and listen to it. Don't pause the video. Listen to the video once again and underline the difficult words and learn how do I pronounce the words, and try to pronounce these words on your own as well. So let's move towards the difficult words, and this is come out with. What do you think? What does it mean? इसका क्या मतलब हो सकता है? Come out with, किसी चीज से बाहर निकलना? No, I have explained this thing for you in phrasal verbs. The phrasal verbs are the tricky things in English. Like, they may seem one thing and they may mean completely different. To come up with का मतलब होता है to be able to say something. He wants to say something. वो कुछ कहना चाहता है. ठीक है? Buddy is a noun. Okay, it means a friend. And buddy is मैंने कल आपको ये बात बताई थी और दोबारा मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि देखें, ये चैप्टर जो है वो दो दोस्तों के बारे में है, और दो दोस्तों के बारे में उनकी फ्रेंडशिप कितने क्लोज हैं, वो कितने एक दूसरे को चाहते हैं, कितने करीब हैं एक दूसरे के लिए. तो फिर उसके लिए राइटर को उनको उसी तरह की लैंग्वेज देनी पड़ती है, इनफॉर्मल लैंग्वेज देनी पड़ती है. किंग जब बोलता है तो उसकी जो है लैंग्वेज किंग वाली होती है. बैगर जब बोलता है उसकी लैंग्वेज बैगर वाली होती है. बाप जब बोलता है उसकी लैंग्वेज बाप वाली होती है. इसी तरह से जब दोस्त आपस में बोल रहे होते हैं तो उनकी लैंग्वेज दोस्तों वाली होती है. तो इस चैप्टर में आपने ये चीज़ देखी होगी कि इसमें लैंग्वेज जो है वो जो स्ट्रीट लैंग्वेज हम कह सकते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज हम कह सकते हैं, वो यूज़ की गई है, जिससे हमें पता चलता है कि वो दोनों दोस्त कितने एक दूसरे के करीब हैं. तो बड़ी जो है वो फ्रेंड को बोलते हैं, क्लोज फ्रेंड को बोलते हैं, मगर दिस इज इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग इट. इनफॉर्मली ऐसे कहा जा सकता है. Formally you cannot call someone buddy, okay? When you are too close to someone, when you are informal with someone, so only then you can use this word buddy. So pulling punches, pulling punches mean किसी के ऊपर वार करना, मगर किसी के ऊपर वार करना ऐसे कि अगले को तकलीफ ना हो, या अगले को आप जो है वो जानबूझकर जिता रहे हो, अगले को जानबूझकर आप जो है ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि जो है आप मार तो रहे हैं, मगर हकीकत में आप दिल से उसको जो है वो उसको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते. ड्रॉ मीन्स टू टाई इवन स्कोर. ना जीत होती है, ना जिसमें हार होती है. ठीक है? टाई द ड्रॉ द मैच. एलिमिनेशन जो होता है व्हेन यू एक्सपेल समवन, ओके, वाइप आउट समवन, व्हेन यू रिमूव समवन कंप्लीटली. और ये हमारे पास क्या है, ये नाउन के तौर पर यूज किया गया. ठीक है? इसी तरह से टेप्ड का मतलब होता है ये थपाना, जैसे शोल्डर के ऊपर कहते हैं शाबाश. ठीक है? ऐसे जो है वो टैपिंग बोलते हैं. तो टेप्ड वर्ब है और इट मीन्स टू स्ट्राइक तो है, हम जब हम देखते हैं तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि वार करना, मगर दिस इज नॉट टेपिंग, इज नॉट स्ट्राइकिंग, लाइक दिस इज थपथपाना, इसको बोलते हैं थपथपाना. ब्रेकिंग मीन टू शेखी बिखेरना, लंबी छोड़ना जैसे हम बोलते हैं. ठीक है? तो प्राउड बूस्टफुल, किसी जो है वो
ज़रूरत से ज़्यादा मगरूर या फ़ख्र या तौर पर किसी चीज़ के बारे में बोलना, उसको बोलते हैं bragging. I'm not bragging about anything. Okay, this is bragging. And fair and square. फेयर एंड स्क्वायर जो है ये हमारे पास एक फ्रेज है, ठीक है, और फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्टली, ठीक है, ईमानदारी के साथ, फेयर, ठीक है. एंड नॉडेड मींस, वी डिस्कस दिस वर्ड yesterday as well, I think, in the previous paragraph. And moving head up and down in affirmation. Affirmation कहते हैं किसी चीज़ के साथ जब आप एग्री करते हैं, ठीक है, तो उसको affirmation बोलते हैं. Departed का मतलब होता है left. यहाँ पे हमारे पास जो यूज़ किया गया है that he departed to meet him in the ring. ये यहाँ पर depart का मतलब होता है जुदा हो जाना, चले जाना. मगर departed soul आपने कभी कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा. Departed soul में जब जो है वो रूह परवाह कर जाती है, जब कोई जो है वो मर जाता है, जब when someone is no more, when someone is dead. So confront mean to face someone. किसी का आमना सामना करना, confronting something, confronting your enemy, confronting your friend or something, or confronting challenges as well. Relax my, I'm tired and relax myself, loosen up, okay, loosen up or de-stress. When you work day and night, दिन रात काम करते हैं और फिर अपने आप को जो है वो रिलैक्स करते हैं, इसको भी रिलैक्सेशन बोलते हैं. और perplexed का मतलब होता है baffled, very puzzled. जब इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कंफ्यूजन होती है उसको, ठीक है, कोई चीज़ क्लियर उसको नहीं होती, उसको कहते हैं हम perplexed. Okay, these are the verbs, the paragraph that we are going to discuss today, and I hope you have no problem with these. And आपको ज़हन में रखने की क्या चीज़ है, देखें मैंने कल भी आपको बताया, फिर भी आपको बता रहा हूँ, ये है कि देखें आपने इन वर्ड्स को, इन फ्रेजेस को, इन फ्रेजल वर्ब्स को जो है आपने ये सीखना है कि किस तरह से आप अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी राइटिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सिर्फ याद करना ही काफ़ी नहीं है, और आपको यहाँ से ये आइडिया करना चाहिए कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से ये बिलोंग करते हैं, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर 10th क्लास में जो है आपको जो है यू नीड टू नो और यू नीड टू हैव क्लियर आइडिया ऑफ what part of speech these words are. आगे जाके हम जो है वो phrases को देखेंगे, फिर clauses को देखेंगे, फिर sentences को देखेंगे. But until and unless you are not clear about these parts of speech, you will not be able to handle phrases, clauses, sentences or anything else. So you must be very clear about these things. ठीक है? These are the tricky things in English. So you must be clear about all these things. So let's try start translating it. ठीक है? अब इसको जो है वो हम ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं. Ali broke the silence. ये हम कर चुके थे, मगर यहाँ से शुरू कर लेते हैं. Ali broke the silence. अली ने खामोशी तोड़ी और कहा man. अब यहाँ पे जो है वो यहाँ पे क्या यूज़ किया है, जिसको हम बोलते हैं quotation mark. quotation mark में आपको शायद मैं बता चुका हूँ, वरना फिर मैं आपको बता देता हूँ. quotation mark में ये होता है जब आप किसी की कही हुई बात को बगैर किसी रद्द बदल के, बगैर किसी कमी, किसी कोताही और किसी इजाफे के बगैर आप उसको एज इट इज़ आप अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पर देखें राइटर थर्ड पर्सन जो है इस स्टोरी को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है, मगर ये है वो थर्ड पर्सन जो है, जब यहाँ पर फिर उसकी जो है थर्ड पर्सन की कोई बात नहीं होगी, बल्कि वो वही जुमला जो कि उस कैरेक्टर के मुंह से निकला है या उस फर्द के नाम से निकला है वो यहाँ पर डाल दिया गया है. इस कोटेशन मार्क का मतलब क्या है, इसके अंदर जो कुछ भी है वो किसी का है, वो जो बंदा एक्सप्लेन कर रहा है, जो नरेट कर रहा है, उसका उसमें कोई लेना देना नहीं है. तो फिर देखें वहाँ पे वो क्या कहता है, मैन आई डोंट नो हाउ टू कम आउट विद इट. मैन यहाँ पे ऐसे नहीं कहेगा कि आदमी, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसे कैसे करना है. वो क्या दोस्त, वो जब इनफॉर्मली आप किसी अमेरिकन में या फिर जो है वो इंग्लिश स्पीकर जब किसी से इनफॉर्मली बात करते हैं तो दे कॉल इट मैन. ओके, मोस्टली ब्लैक पीपल डू दिस, मैन. ठीक है, मैन आई डोंट नो हाउ टू कम आउट विद इट. दोस्त मैं नहीं जानता कि ये मैं कैसे कहूँ या मैं कैसे कहूँ. गुल हेल्प्ड, गुल ने मदद की. क्या मदद की थी? इट्स अबाउट आवर फाइट राइट. ये हमारे मुकाबले के बारे में है. क्या मैं सही कह रहा हूँ? ठीक है, तो या राइट. अब आगे से देखें, वो गुल की बात खत्म होती है तो फिर आगे से जो है वो दूसरे दोस्त की बात शुरू हो जाती है, फिर वो भी जो है वो कोटेशन मार्क में है. ठीक है, तो आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट टू बरी. दोस्त मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था. आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट लाइक यू नो समथिंग व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन. ठीक है, आई हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, जो कि माजी में काम शुरू हो अभी तक जारी हो. ठीक है, तो क्या कहते हैं, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट टू बरी. दोस्त मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था. इनफैक्ट सोच रहा हूँ. ठीक है, इनफैक्ट सिंस वी फाउंड आउट इट वाज, इनफैक्ट मीन्स दरअसल.
Since we found out it was going to be me and you, जब से मुझे मालूम या हमें मालूम हुआ है कि ये तुम और मैं हैं, ठीक है, are going to be me and you, तुम और मैं हैं. I have been awake at nights, मैं सारी रात जाग रहा हूँ. Pulling punches on you, तुम्हारे ऊपर आहिस्तगी के साथ जो है मुक्के के वार कर रहा हूँ. Trying not to hurt you, और कोशिश करते हुए कि मैं तुम्हें तकलीफ ना दूँ. ठीक, सेम हियर. आगे से बोल कहता है बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही है, मेरे साथ भी ऐसा ही है. सेम, नॉट वी प्रोनाउंस इट एज here, this is not here, this is here, okay, here. And same here, it is natural, ये कुदरती बात है. to think about the fight, मुकाबले के बारे में सोचना कुदरती अमल है. I mean, मेरा मतलब है we both are outstanding fighters, हम दोनों गैर मामूली या बेहतरीन लड़ाके हैं या फिर जो है वो खिलाड़ी हैं. And we both want to win, और हम दोनों जीतना चाहते हैं. ऐसी सिचुएशन बड़ी अजीब सी होती है जब आप किसी जीतना भी चाह रहे होते हैं और हारना भी चाह रहे होते हैं. You know, this is very difficult situation for both of them. Put yourself in the situation. आप अगर होते हो और ऐसा आपका दोस्त होता तो आप क्या करते? ठीक है, तो यहाँ पर आपकी दोस्ती का टेस्ट होता है और but only one of us can win, मगर हम दोनों में से कोई एक जीत सकता है. There is no draw in the elimination, ठीक है. नॉक आउट मुकाबले में जो है कोई बराबरी नहीं होती. There is no draw in the elimination. नॉकआउट मुकाबले में बराबरी नहीं होती. अली टेप्ड गोल जेंटली, अली ने नरमी के साथ जो है अली टेप्ड गोल जेंटली ऑन द शोल्डर, अली ने गुल के कंधे के ऊपर गुल के कंधे को आहिस्तगी से थपथपाया. I don't mean to sound like I am bragging. I don't mean, मेरा ये मतलब नहीं है to sound like I am bragging, कि ऐसे जैसे मैं शेखी बिखार रहा हूँ या फिर मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ. ब्रो भाई, but I want to win, मैं जीतना चाहता हूँ. fair and square, ठीक है, मुनसिफाना तरीके से और शफाफाना तरीके से जीतना चाहता हूँ. गुल nodded quietly, गुल ने खामोशी से सर हिलाया. ब्रदर, फ्रेंड और नो फ्रेंड, दोस्त या फिर दोस्त ना हो. भाई, ब्रो, ब्रदर और नो, भाई या नहीं. एंड देयर आर हाउ मेनी डॉट्स देयर? देयर आर 3 डॉट्स. 1 2 3. एंड व्हाट डज इट सिग्निफाई? हैव यू एवर सीन दिस बिफोर? जब आपके पास ऐसी राइटिंग में, स्टोरी में, कहानी में, अखबार में, किसी सेंटेंस में जो है वो 3 डॉट्स आगे मिले, 3 डॉट्स, दीज कैन नॉट बी 4 5 6, ये अगर 4 5 6 हो जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा. बिल्कुल इसके जो है वो स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है? 3 डॉट्स. 3 डॉट्स होंगे और वो 3 डॉट्स इस चीज़ को मेंशन करेंगे कि अब कोई बात जो है यहाँ से क्या की गई है? एलिमिनेट की गई है, या कोई बात ऐसी थी जो कि गैर ज़रूरी थी, अहम नहीं थी, या राइटर बताना नहीं चाह रहा, उसको वहाँ पर क्या किया? हज़फ किया गया है, छोड़ दिया गया है. और क्या कर दिया गया? 3 डॉट से हमें बता दिया गया कि यहाँ पे कोई और चीज़ थी जिसको डिस्कस नहीं किया गया. अब यहाँ पे देखें, ये जुमला बिल्कुल मुकम्मल नहीं है जिसमें कहता है कि देखिए फ्रेंड और नो फ्रेंड, ब्रदर आर और नो, तो आगे जो है वो चीज़ है, कुछ लिखा हुआ है मगर वो कहना नहीं चाह रहा. मगर इस सेंटेंस से हमें एक बात पता चल रही है कि ये वो झिझक रहा है कि देखो दोस्त हो या दोस्त ना हो, भाई हो या भाई ना हो, तो वो झिझकने को भी जो है वो सेंटेंस के इस अगले पार्ट को क्या करता है? एलिमिनेट करता है, इंटेंशनली छोड़ देता है. तो आगे देखते हैं. दे शुक हैंड्स, उन्होंने हाथ मिलाया. एंड डिपार्टेड टू कन्फ्रंट ईच अदर. डिपार्टेड का मतलब ये नहीं है कि वो क्या हो गए? वो मर गए दोनों, ठीक है, बिल्कुल मरे नहीं है. डिपार्टेड का मतलब वो जुदा हो गए. एंड डिपार्टेड, और जुदा हुए. दे शुक हैंड्स, उन्होंने हाथ मिलाया और जुदा हो गए. टू कन्फ्रंट ईच अदर इन द रिंग, रिंग में एक दूसरे का सामना करने के लिए, ठीक है. वॉकिंग द स्ट्रीट्स, गलियों में से जाते हुए. हैड नॉट रिलैक्स्ड, वॉकिंग द स्ट्रीट्स हैड नॉट रिलैक्स्ड अली, गलियों में से गुजरने ने भी अली को सुकून ना बख्शा. द मोर ही थॉट अबाउट द फाइट, जितना ज्यादा वो मुकाबले के बारे में सोचता, द मोर परप्लेक्स्ड ही फेल्ट, तो वो उतना ही मजीद उलझता, कंफ्यूज होता. व्हाट शुड आई डू, उसको क्या करना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? क्या ख्याल है कि उसको क्या करना चाहिए? अगर आप उसकी जगह होते हैं तो आप क्या करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जो है इम्तिहान है किस चीज़ का?
दोस्ती का। यहाँ पर इम्तिहान है किस चीज़ का? अपनी जो है वो सेल्फ का, अपने आप को कुर्बान करते हैं, अपने दोस्त को कुर्बान करते हैं, अपनी दोस्ती को कुर्बान करते हैं, अपने ख्वाबों को कुर्बान करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, और यू नो दैट वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग अर्लियर, ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो कितना दोनों ने मिलकर इस काम के लिए, इस चीज़ के लिए जो है वो मिलकर उन्होंने जो है वो मेहनत की, मुशक्क़त की और कितनी ख्वाहिश रखते थे। तो अब यहाँ पे फैसला होना है कि किसने जीतना है और किसने हारना है और किसने जो है वो कुर्बानी देनी, कोई कुर्बानी देगा या फिर नहीं देगा। तो ये हमारे पास आज का जो है वो लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक जो है वो इन वर्ड्स को याद करें, इनकी स्पेलिंग्स देखें, इनकी जो है वो इनकी यूज़ देखें और उनको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें। और ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। बाय फॉर नाउ, अल्लाह हाफ़िज़।